Start with Financial Stability and Development Council. Any idea about it? So it is headed by finance minister, and they look after they look after the financial stability in the country. All right. So I'll call it super regulator. It's a super regulator, and it is essential to understand that it is not a regulatory body itself like RBI or SEBI, but a coordinating body that ensure all regulator work together without friction. So that's the reason I called it super regulator. So think of it as the captain's meeting where the leaders of all financial departments sit together to make sure that the economy does not crash. So tell me about its establishment. So in 2010, Following the 2008 global financial crisis, recommended by, tell me, Raghuram Rajan Committee, Raghuram Rajan Committee 2008 on financial sector reform. Is, a, is it a statutory body or not? so it's not. Non statutory. Created by an executive order, not an act of parliament. Who is the chairperson? Finance minister. Finance Minister. Okay. Composition. RBI Governor. Chairperson of SEBI. IRDA. SEBI is for stocks market. IRDA DAI for Insurance. insurance. PF RDA. Provident fund. IBBI Industries. insolvency. Secretaries of Finance, Economic Affairs, Revenue, Financial Secretary, and Ministry of Electronics and IT, and Chief Economic Advisor. And the subcommittee, while the main council meet occasionally, the day-to-day technical work is done by the FSDC subcommittee. FSDC means this Financial Stability Development Council. So it is chaired by Governor of RBI, and its role is to meet more frequently to monitor systematic risks and resolve dispute between regulators. For example, in September 2025, what happened that in the 32nd meeting of this subcommittee, it reviewed global financial stability risk. So primary function is financial stability, financial stability. I'll explain it. So it keeps an eye on bubbles like a sudden crash in the stock market or a banking crisis. Second thing is inter-regulatory coordination, solving fights between regulators. For example, if SEBI and RBI both want to regulate the same new digital coin, then financial
literacy and inclusion, making sure banking reaches the poorest village and people understand how to save money, and then macro prudential supervision, watching financial conglomerates like huge companies like SBI or HDFC that are too big to fail. अभी recent focus इसका और सुन लो अब क्या रहा है. First thing, standardized KYC, creating a risk-based uniform KYC process to make it easier for citizens to open accounts across different banks and apps. Then predatory lending. ये predatory lending क्या होती है? बताओ. बहुत न्यूज़ में था ये. Tell me what is predatory. उदित आप बताओ. Am I audible or not? Yes, sir. तो फिर जवाब दो. ये predatory lending क्या है? हाई हाई इंटरेस्ट रेट में लोन देना सर. हाँ उसी तरीके का है. अब ऐसे समझो कि जो लोन देने वाली जो एप्लीकेशन है, इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन दैट यूज हैरेसमेंट फॉर रिकवरी, और जो साइबर रेजिलियंस है, डेवलपिंग ए यूनिफाइड स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मैसिव एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स. अब डिस्कस करते हैं सीपीआई. Sir, can you explain it again? Predatory lending. जैसे इलीगल एप्लीकेशन नहीं होती हैं Yes, sir. जो लोन देती हैं, ठीक है, बहुत हाई इंटरेस्ट पे, और फिर लोग चुका नहीं पाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको हैरेस करते हैं. Yes, sir. Understood. ठीक है. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिस्कस करते हैं. उनको मतलब एक तरीके से फंसा लेना लोगों को, है ना, और अनएथिकल तरीके से और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करना. तो ये सब चीज़ें प्रेडेटरी लैंडिंग का पार्ट है. अब बात करते हैं सीपीआई की. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI. So the CPI tracks the average change in price of a basket of goods and services that household actually buy. CPI can CPI में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं कि नहीं आती हैं, बताओ. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो मान लो एक बास्केट है. बास्केट मतलब एक टोकरी समझ लो आपके पास है, ठीक है. अब उस टोकरी में आप कितनी चीज़ें रखते हो अपने लिए, कितनी गुड्स, सर्विसेज तो ऑब्वियसली नहीं रख पाओगे, लेकिन गुड्स आप रख सकते हो, ठीक है. तो कितनी गुड्स को आप रख सकते हो, फिर आप अपने लिए क्या क्या चीज़ें डे टू डे यूज पे, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बाई करी, पेट्रोल बाई कर रहे हो, ये सब दुनिया भर की चीज़ें. तो जो किसी आदमी की आप सर्विस ले रहे हो, आपके यहाँ गैस का सिलेंडर लेके आया है, तो जो आदमी लेके आया डिलीवरी वाला, तो आपने उसकी सर्विसेज ली. तो उस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं कि डे टू डे बेसिस पे एक हाउस होल्ड के पास जो चीज़ें होती हैं. अब इंडिकेटर, unlike the wholesale price index which only tracks goods, the CPI includes services which makes up a huge part of our
स्पेंडिंग। अब आपने जैसे मुझे पेमेंट करा है, तो आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो ना, एजुकेशनल सर्विसेज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपको बास्केट में तो नहीं दिखेगा, ये बास्केट में तो नहीं रख सकते हो सर्विसेज, बट सो WPI में सिर्फ क्या इंक्लूड रहता है? Goods. CPI, बोथ गुड्स एंड, Services. ठीक है। पब्लिश कौन करता है? सर CPI को NSO. द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, Statistics. यस, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। यूसेज, इसका क्या यूसेज है? So it is used to measure retail inflation and also used by RBI टूल यूज्ड बाय RBI for inflation targeting. फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था क्या होता है, ठीक है। Yes, sir. सो अभी कुछ डिस्कस करने का है नहीं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट दी, एक चीज़ और जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। Dearance allowed. यस, ठीक है। सो समझ में आए? Yes, sir. बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 2012 था, ठीक है। शिफ्टेड फ्रॉम 2012 टू 2024, द फूड शिफ्ट। ये चीज़ें याद रख लेना, वो कभी कभार जो है ना उनका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, तो वो डेटा में चले जाते हैं। सो द वेट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस हैज़ बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फूड एंड beverages reduced from 46% to approximately 37%. This is because as Indians get richer, we spend a smaller percentage of our income on basic food and more on lifestyle items. New items क्या ऐड हुए हैं इसमें? ये चीज़ आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, जैसे डेटा हो गया या कुछ ही हो गया। सो फ्रॉम माय साइड आई ऑल्सो टेक ड्यू केयर, बट समटाइम क्या होता है कि इधर उधर कुछ हो गया थोड़ा बहुत भी। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। न्यू आइटम्स क्या है? द बास्केट नाउ इंक्लूड्स मॉडर्न एसेंशियल लाइक, क्योंकि कभी कभार कुछ नया अपडेट आ गया। सो द बास्केट नाउ इंक्लूड्स मॉडर्न एसेंशियल लाइक स्मार्टफोन्स, OTT, subscription like Netflix, Prime, app-based cabs like Uber, Ola, outdated
items like VCRs removed, increased housing weight. Housing and utilities like electricity, gas now carry more importance in the calculation. ठीक है, अब टाइप ऑफ सीपीआई डिस्कस कर लेते हैं. So while the CPI combined is the headline number you see in the news, different versions are tracked for a specific group. कोर इन्फ्लेशन में क्या नहीं होता है? सर कोर में सर फूड एंड फ्यूल. फूड एंड फ्यूल, FF. टाइप्स ऑफ सीपीआई. सो जो हमने डिस्कस कर रहे हैं एक कंबाइंड सीपीआई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन अब सीपीआई में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ मैं लिखूँगा इसका वर्जन, इसका टारगेट ग्रुप एंड कंपाइलिंग अथॉरिटी. CPI IW. टारगेट ग्रुप क्या है ज्योति? इंडस्ट्रियल जो सर हम वर्कर्स. वर्कर आरुषि कौन रिलीज करता है इसको? लेबर ब्यूरो. लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. CPI AL. AL किसके लिए? एग्रीकल्चर लेबर. लेबर ब्यूरो. CPI RL. RL किसके लिए? रूरल लेबर्स. रूरल लेबर्स कौन करता है रिलीज? सेम लेबर ब्यूरो. CPI रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड कौन करता है? ये जनरल पब्लिक. कौन करता है इसको रिलीज? NSO. NSO. WPI डिस्कस करें कि पहले WPI डिस्कस कर लेते हैं? समझ में आ गया CPI का कॉन्सेप्ट? यस सर. या फिर डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूं तो उससे आप क्या बताओ? वो एक बार स्क्रीनशॉट लेना था थोड़ा सा. हो गया सर. अगर आप कहो तो मैं कंपैरिजन करके बता दूं या फिर पूरा आप कहो तो पूरा बताऊं आपको? सर कंपैरिजन कर दीजिए. है ना, तो उससे दोनों का कंपैरिजन करने से आपको वैसे ही ईजी हो जाएगा. CPI वर्सेस WPI. फीचर CPI WPI. किस लेवल पे यूज होता है? रिटेल. ठीक है, ये पहला डिफरेंस है. रिटेल का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, जैसे आप और हम लोग खरीदते हैं, है ना भाई. हमें एक ही शर्ट चाहिए या एक ही टी शर्ट चाहिए या फिर हमें एक ही फ़ोन चाहिए, हम 100 शर्ट थोड़ी खरीदेंगे, है ना. तो यस सर. हम लोगों के लिए जो रिटेल, हम लोगों के लिए जो कंज्यूमर लेवल पे होता है, ये क्या होता है? होलसेल. जैसा कि इसका नेम है, होलसेल लेवल, प्रोड्यूसर के लेवल पर. अब प्रोड्यूसर के पास जो है 100 कार आ रही हैं या फिर 100 आईफोन कोई ख़रीद रहा है, तो उसके लेवल से होता है.
समझ में आ गया है कि बेसिक डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्या कवर करता है? So goods and services both. गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. होलसेल में क्या होता है? Only goods. Only goods. ओनली गुड्स। फूड का वेट कितना होता है? So 37%. एक बार चेक जरूर करना आप, ठीक है? वेरी हाई एंड इट इम्पैक्ट्स कॉमन मैन। इसमें रिलेटिवली लोअर होता है। मेन ड्राइवर क्या है इसका? डिमांड एंड डिमांड कितनी है, ठीक है? डिमांड एंड सर्विसेज। यहाँ क्या है? ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल, मेटल, ठीक है? Yes, sir. अब इसमें WPI की जो WPI का बेस ईयर क्या है? थोड़ा सा जो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ WPI की। फ्रीक्वेंसी क्या है WPI की? मंथली, हर मंथ पब्लिश होता है। बेस ईयर, ज्योति बेस ईयर बताओ। सर 2011-12। यस, अभी तक तो यही है। तो बाकी डिस्कशन काफ़ी चल रहा है। CPI का क्या हो गया है बेस ईयर? 24। 23 to 24, ठीक है? अगर कभी Yes, कभार sir. वो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लिखने को 24 25 भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है? Okay, sir. बेस ईयर समझ में आ ही गया है। सिर्फ इट ट्रैक्स ओनली गुड्स, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विस। कौन पब्लिश करता है? Office of Economic Advisor. मिनिस्ट्री ऑफ Commerce and Industries. 3 बकेट्स ऑफ WPI। इसमें 3 बकेट्स होती हैं, ठीक है? ग्रुप, वेटेज, अब एग्जाम्पल्स। सबसे पहले क्या है? Bengal. सबसे पहले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कितना वेट है इसका? 64.2. अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या क्या आता है? स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, मशीनरी, क्लोथिंग, ठीक है? दूसरा क्या है? प्राइमरी आर्टिकल्स।
प्राइमरी आर्टिकल्स का लगभग कितना है? 22. रॉ फूड लाइक राइस, wheat, minerals, crude oil, natural gas. Fuel and Power. approximately 13.2%. 4. Petrol, diesel, LPG, इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपसे पूछ ले वो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आप कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? No, sir. तो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि समटाइम WPI इज लो बट CPI इज हाई। दिस हैपन इफ फूड प्राइस विच हैव अ ह्यूज वेट इन CPI आर राइजिंग। तो अभी भी जैसे यहाँ फूड का लगभग 22.6% है, वहाँ 37% वेट, 37 ही है ना? Yes, sir. ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें डाइवर्जेंस आ जाता है। बट जैसे ग्लोबल ऑयल या मेटल प्राइजेस हैं दैट ड्राइव WPI, अगर वो उनकी प्राइजेस गिर रही हैं, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल हो गया, मशीनरी हो गया, तो मोस्टली जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट है WPI उस पर बेस्ड रहती है। दूसरा, GDP डिफ्लेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? बताओ ज्योति। मतलब WPI और CPI में से पूछ रहे? हाँ, WPI इज ऑफन यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू कैलकुलेट रियल GDP। जो रियल GDP होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? WPI। WPI. हाँ, बाय रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम द नॉमिनल GDP। जैसे नॉमिनल GDP और रियल GDP में अंतर आता है कि नहीं आता है आरुषि? Yes, sir. ज्योति पता है Yes, sir. क्या है, समझाओ। Sir, मैं बताऊँ? बताओ। सर, नॉमिनल GDP में करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं और रियल GDP में बेस ईयर के। एग्जाम्पल दे पाओगे आप? सर, एग्जाम्पल इन द सेंस जैसे कि कोई पेन है, अगर उसका आज प्राइस 10 रुपीज़ है और उसकी क्वांटिटी 2 है, तो फिर हम 10 × 2 कर लेंगे। और बेस ईयर में उसका अगर प्राइस 5 रुपीज़ था तो फिर 5 × 2 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये 2025 है। 25 में पेन की कॉस्ट थी 10 और दो क्वांटिटी पेन की प्रोड्यूस हुई, तो रियल एंड नॉमिनल GDP सेम है। ठीक है। अब क्या हुआ, 2026 में क्या हुआ कि पेन की कॉस्ट 12 रुपये हो गई और क्वांटिटी अभी भी 2 ही प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 24 हो गई। तो अब बताओ 2026 में रियल GDP कितनी होगी और नॉमिनल GDP कितनी होगी? सर, रियल 20 हो गया और नॉमिनल 24। हाँ, रियल 20, नॉमिनल 24। अभी जो 4 रुपये GDP में बढ़े हैं,
ये तो कॉस्ट के वजह से बढ़े, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े। तो रियल जीडीपी में क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन हटा देते हैं और हम देखते हैं कि रियल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब मान लो यहाँ कॉस्ट हो जाती 12 और क्वांटिटी होती 5 प्रोड्यूस, तो रियल जीडीपी कितनी होती? सर 50। यस, क्योंकि प्राइस तो हम सेम ही रखते हैं, बेस ईयर की प्राइस पे ही चेक करते हैं, है ना। यस सर। तो समझ में आ गया ज्योति? यस सर। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या यूज करते हैं रियल जीडीपी के लिए? WPI। WPI। ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, बेसिकली स्टेजेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आज डिस्कस करना है कि कल डिस्कस करना है, आप लोग बताओ। सर मैं कल और परसों क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। अच्छा, सर आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब से देखूंगी। हाँ मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट लगेंगे। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। So India's three-stage nuclear power program was formulated by Dr. Homi Bhabha in the 1950s to secure India's long-term energy independence. The strategy is built around a unique geological reality. India has very limited uranium. इंडिया के पास कितना रिजर्व है यूरेनियम का? Approximately 2% of global reserve. But vast थोरियम रिजर्व्स, कितना है थोरियम का लगभग इंडिया में? 20% ऑफ ग्लोबल। Since thorium cannot be used directly as fuel, it must be converted through 3 stages. तो स्टेज 1 क्या होती है? एनी आइडिया? Pressurized heavy water reactors. In this stage we use natural uranium as fuel. The goal is twofold: produce electricity and create a starter fuel for the next stage. तो फ्यूल क्या है इसमें? नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल है और इसमें एक यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 238 कंटेनिंग 0.7% यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 है जो कि इम्पोर्टेंट है, 238 तो बकवास है, उसका कुछ खास यूज है नहीं। प्रोसेस: यूरेनियम 235 का क्या होता है? इट अंडरगोज फिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिजन क्या होता है? सर एक मॉलिक्यूल जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, 2 मॉलिक्यूल्स में। और फ्यूजन? सर 2 जब एक बन जाए।
फिजन में देखो स्प्लिट होता है और फ्यूज़न में कंबाइन करते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा याद, इतना ही बेसिक है। फिजन में उसको जैसे कहते हैं ना कि फिजल हो गई, तो वो टूटना एक तरीके से, और फ्यूज़न में उसको फ्यूज़ हो रहा है, वो एक दूसरे में मिलना, ठीक है। Yes, sir, like Indo-Western fusion. So it undergoes fission to produce energy, while the non-fissionable uranium-238 absorbs neutrons and turn into plutonium-239. So जो 238 होता है, it absorbs, क्या absorb करता है? Neutron and turn into plutonium 239. So if we talk about current status, this stage is fully mature. India operate 18 plus pressurized heavy water reactors. आपको कुछ मैं एग्जांपल अगर मुझे बताना है तो एक रावत भाटा में है, एक कैगा करके जगह है, एक ककरा पार करके जगह है, ऐसी 18 प्लस हैं। एंड इंडिया चोज pressurized heavy water reactors because they don't require enriched uranium, which we lacked and cannot be built indigenously. स्टेज टू, स्टेज टू क्या है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की? फास्ट ब्रीडर reactors. This is a bridge stage. We take the plutonium created in stage 1 and use it to breed even more fuel. Fuel क्या निकलता है? Mixed oxide. Fuel, a combination of plutonium 239 and uranium 238. Process क्या है इसकी? As the plutonium burns, it converts the surrounding uranium 238 blanket into even more plutonium. This is why it is called a breeder. It produces more fuel than it consumes. Then transition to stage 3. Once enough plutonium is built up, a thorium TS 232 blanket is introduced, which converted into uranium 233. Current status: India is transitioning here. The prototype fast breeder reactor at Kalpakkam is the flagship project. Stage 3, thorium based reactor. This is the ultimate goal. Once we have enough uranium 233 from stage 2, we can finally tap into our massive thorium reserves. Fuel क्या है इसमें? यूरेनियम 233 एंड थोरियम 232. Process: uranium 233 provides the energy while thorium act as the fertile material. एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? यूरेनियम 233. And thorium acts as the fertile material that turns into more uranium 233 during the reaction. Current status: under development, experimental reactor like Kamini, Kalpakkam already use uranium 233,
The advanced heavy water reactor is being designed specifically for this use. Long term vision: if successful, India can meet its energy needs for 300 to 400 years just using domestic thorium. ठीक है? Yes, sir. और in 2025 and 26, 25-26 union budget, the government launched the nuclear energy mission and the Shanti law to allow private sector partnership is in building Bharat small reactors, 220 megawatt PHWRs. PHWR क्या है? Pressurized heavy water reactors. This is intended to rapidly scale up the plutonium inventory needed to accelerate our move into stage 2 and stage 3. समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो अब कल डिस्कशन में नए टॉपिक्स पिक करेंगे टेस्ट सीरीज से और उनको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए